Good evening, dear students. In our previous lecture, we started discussion about Gauss theorem. We have proved that thing. Now we will be going ahead to show this particular thing, that this particular statement which has developed, which is developed to show a relationship between flux and charge. Okay, this particular statement is in accordance to the fundamental statement in electrostat, that is Coulomb law. Okay, so to show that particular thing, we will be deducing Coulomb's law from Gauss law. Okay, deduction of Coulomb's law. Coulomb's law from Gauss theorem. Gauss, Gauss law. Okay. Some of the books they are writing Gauss theorem also. Okay. So Gauss law you have to write. Okay. Because this particular thing was developed based on experiments. Okay. And experimentally proved things. Okay. They are law basically. Fine. So Gauss law. That is here we are considering a charge. Okay. Charge Q. फाइन. अब सबसे पहला टास्क क्या करना है हमें, ठीक है. इस गिवन चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, एनक्लोज करना है, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस के अंदर. और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल. अगर सिमेट्रिकल लोगे तो कैलकुलेशन विल बी इजी, और अगर नॉन सिमेट्रिकल लोगे तो कैलकुलेशन विल बी वेरी मच डिफिकल्ट. ओके, तो हम सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर इसको एनक्लोज कर देते हैं. तो एनक्लोजिंग द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन in symmetrical Gaussian surface, तो symmetrical Gaussian surface correspondingly will be a sphere all around like this, sphere of this radius r. Okay, now divide the whole Gaussian surface in infinitely small parts and consider one of the area element. ये कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है. दिस इज लाइक दिस. ओके, अब हमें क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है ना, ई एंड डी एस वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एट दिस पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर will be like this. Positive charge है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज when will be placed over here, रिपेल करेगा उसको, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आ गया. नाउ डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds. ओके, थीटा 0 डिग्री. ओके, नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, जो स्टेटमेंट है वो अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग गॉस लॉ. Now Gauss law says close surface integral of electric field intensity 1 over epsilon naught times, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है बीच में, epsilon naught times the charge enclosed by the Gaussian surface, that is Q. Okay, now opening this integral, angle between E and ds, E ds, then cos theta, angle between E and ds, that is 0 in this situation, 0 degree, okay, is equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed. Okay, now E
दिस एरो विल नॉट बी देयर. क्यों? क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ई, तो दिस एरो was a wrong factor here. Okay, now cos 0 is 1, e at every area element will be same, तो e constant होगा point to point, and e close integral ds 1 over epsilon naught the total charge. Okay, ds जब छोटे छोटे एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे तो इट विल बी मेकिंग अ कंप्लीट स्फीयर, ओके, ऑफ रेडियस r. तो e into 4 pi, radius of the sphere is r square, 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the Gaussian surface. Like this we are getting E is equal to Q over 4 pi epsilon naught r square. Okay, now as we know, E is equal to F over Q naught. Fine. So E is equal to F over Q naught. So we can write this thing as F is equal to Q naught times E, placing this value. What is this? This is your Coulomb's law. Okay, so from Gauss law we are able to deduce Coulomb law. So this particular deduction says that this statement which was developed by Gauss, okay, this is satisfying the basic statements, okay, basic law in the electrostat, that is Coulomb law. Okay, now we will be concentrating in some of the applications of Gauss law. Okay, now Gauss law can be used to find electric field intensity, okay, at any point due to a point charge as well as due to a distributed charge. Okay, कूलम लॉ वाला स्टेटमेंट हम यूज करते थे पॉइंट चार्ज के लिए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, बट गॉस लॉ यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज देता है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स टेक अ एग्जांपल. ओके, electric field intensity at any point due to a uniformly charged and infinitely extended wire, in a long wire, infinitely extended wire, okay, which is uniformly charged, okay, like this. Say positive charge we have on it, okay, positive charge is there. Now suppose we are given any point, okay, and at that particular point we have to calculate the electric field intensity. Now very first thing to concentrate over here is, okay, कि distance जैसे जैसे बढ़ता है, okay, चार्ज का पॉइंट से, उसका कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, किसी भी पॉइंट के ऊपर, ओके, कम होता रहता है. और मेनली जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चार्जेस, ठीक है, वो बिल्कुल सामने वाला चार्ज, ओके, और थोड़ा इधर और थोड़ा इधर, रेस्ट ऑल कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं बट देयर कंट्रीब्यूशन इज वेरी मच स्मॉल. ओके, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक पर्टिकुलर लेंथ कंसीडर कर लेता हूं इसका. ठीक है, पर्टिकुलर लेंथ कंसीडर किया, से एल, यहां से यहां तक का लेंथ हमने कंसीडर कर लिया. ठीक है, आप क्या करेंगे, ठीक, लेट दिस लेंथ, okay, is having charge q, charge on considered length is q, okay, length considered L. Now linear charge density
चार्ज डेंसिटी ऑन वायर, ठीक है, कितना होगा, लैम्डा से लिखते हैं इसको, ओके, क्यू बाय एल, ओके। लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर कंप्लीट वायर, ओके, इज, ठीक है, फॉर दिस पीस वी हैव कैलकुलेटेड, और हमने एज्यूम कर लिया कि पूरे पीस के लिए वही है, पूरे वायर के लिए वही है जो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, ठीक है, ओके। तो अब यहां पे क्या करेंगे, ओके, जितना पीस हमने कंसीडर किया, बिकॉज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इज इन जो चार्जेस पास वाले हैं उनका, रेस्ट ऑल विल बी कंट्रीब्यूटिंग, आई एम नॉट सेइंग दे विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग, वो कंट्रीब्यूट करेंगे बट नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन, बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन होगा उनका, ठीक है। तो हम इतने पीस का, फाइन, नाउ क्या करेंगे, प्लॉट द गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से निकालना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता हुआ गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब ये लीनियर वायर है, ओके, इसका जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा बनेगा, हाँ, विच टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस विल बी एनक्लोजिंग दिस ऑल चार्ज। अब ये लीनियर है, अगर सिमेट्री बनानी है तो इसके चारों तरफ सिलेंडर बना दो, ओके। तो ड्रॉ कर दिया हमने गॉसियन सरफेस ऑफ द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, यहां पे एंड कैप आएगा आपका लाइक दिस, ओके, एंड दिस विल बी लाइक दिस, ये एंड कैप आ गया सिलेंडर का, फाइन, दिस इज दिस, लाइक दिस, ठीक है बेटा। नाउ अब क्या करोगे, अब आपका ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया, ओके, डिवाइड द होल गॉसियन सरफेस इन इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कितने तरह के एरिया एलिमेंट्स जो हैं वो मतलब बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ एरिया एलिमेंट, देखो, एक तो इस पर्टिकुलर एंड कैप के कॉरस्पॉन्डिंगली बनेगा, इसके सारे एरिया एलिमेंट इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे आउटवर्ड, तो यहां से एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे दिस वे, डी एस। नाउ यहां से लाइंस रेडियली बाहर निकलेंगी, पॉजिटिव है तो रेडियली बाहर ऐसे 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 ऐसे, तो यहां पे इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, एरिया एलिमेंट। नाउ दिस इज दिस, ओके, ऐसे है ये टॉप पे, ऐसे यहां पे, तो यहां से एरिया एलिमेंट बाहर की तरफ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, ds फॉर दिस। नाउ फॉर दिस एरिया एलिमेंट ये कंसीडर किया, और इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। इसको वन टाइप सरफेस कह देते हैं, कर्व्ड सरफेस को सेकंड टाइप, एंड थर्ड टाइप ये बन गया आपका ये वाला एंड कैप, इज इट ओके, ठीक है। फॉर दिस द थिंग, all the area element vectors they will be like this, all area element vectors they will be like this, और यहां से सारे रेडियली ऐसे होंगे, रेडियली बाहर, यहां से अगर एलिमेंट रेडियली, ओके। अब अगर आप यहां पे ई वेक्टर मार्क करो, ठीक है, ओके, ई वेक्टर फॉर दिस एलिमेंट विल बी पॉजिटिव है, लाइंस रेडियली बाहर लीव कर रही हैं, तो ई विल बी दिस वे, ई विल बी दिस वे, ई वेक्टर, ओके, फॉर फर्स्ट टाइप, ये वन टाइप एलिमेंट जितने भी हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करो, ध्यान से देखो, ई और डी एस का एंगल 90 डिग्री है फॉर ऑल द एलिमेंट्स विच आर ऑन दिस एंड कैप, ओके, डी एस विल बी लाइक दिस, और ई विल बी रेडियली इधर लाइक दिस और लाइक दिस, और थीटा ऑल एट एवरी एलिमेंट विल बी 90 डिग्री, ओके। ओनली ड्यू टू दिस रीजन हमने अलग अलग कंसीडर नहीं किया है, इस सरफेस के ऊपर एक ही एलिमेंट कंसीडर कर लिया, क्योंकि उन सभी एलिमेंट्स के लिए थीटा इज गोइंग टू बी सेम। Similar is the thing over here, okay, E will be radially out, E, ds like this, theta 90 डिग्री। इस सरफेस के ऊपर भी जितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, एरिया एलिमेंट्स, सबका ds विल बी दिस वे एंड E विल बी रेडियल, इधर दिस और दिस वे रेडियल। तो मतलब आई जस्ट मीन टू से कि E एंड ds एट एवरी पॉइंट, एट एवरी एरिया एलिमेंट विल बी
perpendicular, and theta, angle between them, will be 90 degree. Now, for this second type, E and ds vector always will be parallel to each other. E radially outward at every point, okay, and ds this way. If you are taking a point over here, E will be like this with respect to wire, positive charge. E will be like this radially out, ds will be like this, and E and ds, angle between E and ds, okay, that is 0 degree, and here also it is 0 degree. At every area element which is lying on this curved surface, the theta, the angle, will be 0 degree. Okay, सिंपल थिंग इज हमें वो एरिया एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन इकट्ठे एक ही सेट में कंसीडर कर लेनी है जहां पे थीटा जो है ओके वो सेम. अब देखो इनके सब के लिए थीटा 90 है, इन सब के लिए ds इधर को है और थीटा 90 है, इन सब के लिए थीटा 0 है. तो तीन टाइप्स ऑफ एरियाज कंसीडर करके कॉम्बिनेशन वी कैन हैव अ क्लोज गॉसियन सरफेस. चलो अब ये काम हो गया. अब हम इसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग अपना गॉस थ्योरम, गॉस लॉ. ठीक है, अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ. जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस ओवर द फुल गॉसियन सरफेस 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, नो मीडियम बिटवीन, एम्प्टी स्पेस है, चार्ज एनक्लोज. चार्ज एनक्लोज यहां से यहां तक हमने जितना पार्ट कंसीडर किया उसके ऊपर चार्ज एनक्लोज इज क्यू. ओके, नाउ ई ओपनिंग दिस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस. अब यहां पे देखो ये ई डी एस जो है ओके 1 टाइप 2 टाइप और 3 टाइप, 3 टाइप सर्फेसेस के लिए मैं क्लोज इंटीग्रल है. ओके, इस टर्म को क्रॉस करो. ठीक है, नाउ दिस टर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओपन सर्फेसेस. ठीक, फर्स्ट 1 टाइप ओपन इंटीग्रल होगा ई डॉट डी एस, फाइन, 1 टाइप एरिया प्लस ओपन सरफेस कर्व्ड वाला, अपने आप में सिंगल तो ओपन ही होगा, ई डी एस सेकेंड टाइप प्लस ई डी एस फॉर थर्ड टाइप एरिया. नाउ फर्स्ट टाइप एरिया ये कैप हो गया, सेकंड टाइप एरिया ये कर्व्ड सरफेस हो गया, थर्ड टाइप फिर ये कैप हो गया. तीनों को अगर इकट्ठा क्लब कर दें तो क्लोज गॉसियन सरफेस बनाते हैं. बट अपने आप में तीनों क्या हैं, ओपन सरफेसेस है. मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं लगाया. इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड. नाउ अब इन टर्म्स को ओपन करते हैं. ई डी एस ओके कॉस फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री 1 टाइप सरफेस प्लस सेकेंड टाइप सरफेस कर्व्ड सरफेस थीटा 0 ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस थर्ड टाइप सरफेस ये वाला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ई डी एस cos 90 degree okay is equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed. Now theta 90 cos 90 0, theta 90 cos 90 0, मतलब there will not be any contribution from these end caps, fine, to this integral. तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, रिमेनिंग टर्म इज सेकेंड cos 0 1, we are writing this e okay integration ds e at every point क्योंकि सब सेम डिस्टेंस पे हैं तो e का वैल्यू विल बी सेम. e ds cos 0 1 हो गया 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज. नाउ ds कर्व्ड सरफेस का, ये छोटे छोटे एलिमेंट कर्व्ड सरफेस वाले तो कंप्लीट कर्व्ड सरफेस बन गया. दिस लेंथ ऑलरेडी वी हैव कंसीडर्ड एज l. ओके ठीक है, तो अब ये ds के लिए क्या करेंगे, इसका जो रेडियस है गॉसियन सरफेस हमने r डिस्टेंस पे ड्रॉ किया. ठीक, तो ds सिलेंडर
एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक, इट विल बी E इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर वो तो सरकमफ्रेंस बन गया, मल्टीप्लाइड बाय एल, मल्टीप्लाइड बाय एल, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज। इज इट ओके? नाउ थोड़ा इसको आगे लेके चलते हैं। दिस विल बी E is equal to Q over 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q/L न्यूमरेटर में लेके जाओ, Q/L बिकॉज यू नो दिस टर्म ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, and we are getting E, electric field intensity at any point. Q/L is lambda, as Q/L is linear charge density. Okay, now lambda 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, okay, at any point due to line of charge, due to a wire, charged wire, uniformly having charge uniformly distributed and infinitely extended, ठीक। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मीन E is inversely proportional to single power of R. E from a infinitely extended charged wire is E directly proportional to, inversely proportional to value of R, directly proportional to 1/R. Hope this is clear.